Here, they are asking us for NiCN for 2 minutes. Give geometric structure and memory. See, पहली चीज जो हमको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है वो for NiCN for 2 minus. If you find out the oxidation of nickel, then oxidation number comes to 2. Oxidation number कितना आएगा आपके पास? Second thing, अगर इसका coordination number निकालते हैं, coordination number 4 है because cyanide it's a monodentate ligand and यहाँ पे 4 monodentate ligand है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले हैं. अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास तो coordination number कितना आ रहा है? 4. Keeping this thing in mind, okay, we also know that अगर आपके पास 4 coordination number है then there are two possibilities. एक DsP2 hybridization possible, second sp3 possible. Correct or not? You know about this, correct? Yes. See over here. If you continue, so there are two possibilities for this structure. What are we going to do? First thing, nickel. We know Fe 28 number for nickel. Okay. Nickel is 28 number. 28 number electronic configuration is argon. 3d8 4s2 and I do write more 4p0 4d0. If I know the configuration, it will be like this. And if it was arrows, 3d8 will be like this for electrons. Correct? In 3d8 है. Then we have 4s2 and then we have 4p0 4d6. That's all. This is its original electronic configuration. Correct or not? आपको ये चीज समझ आ रही है? Now, when it is nickel 2 plus, it loses 2 electrons. Then configuration becomes argon 3d8 4s0 4p0 yes sorry 4d0. By mistake I written over here 4s2 instead of 4s0 and like this, if I'm not mistaken, correct? This is your calculation 3d8 4s0 4p0 4d0. Correct or not? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? Now there are two possibility. ये कंपाउंड के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी. एक पॉसिबिलिटी अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? sp3. Okay, sp3 के लिए as we have learned earlier 4s ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, 4p खाली होनी चाहिए, 4d खाली होनी चाहिए, which is already over here. They are vacant. They are vacant. So for sp3 hybridization, new incoming electron pairs from ligand will occupy this orbital. I think so. Till here, sp3, 1s and 3p. sp3 hybridization will take place. And because of sp3 hybridization, यहाँ पे आपके पास क्या मिलने वाला है? इसका जो शेप है वो होगा टेट्राहेड्रल. यस और नो? सेकेंड थिंग जो आपको मिलेगा, इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ओके ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है. यस और नो? So number of unpaired electron आपके पास है 2.
So because of that, it will show paramagnetic moment, paramagnetism, and its magnetic moment mu will be under root n into n plus 2, which is equal to under root 2 into 2 plus 2. That's root 8, and root 8 is, I think so, 2.83 बोहर मैग्नेटॉन, 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। अगर इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तब जाके आपको ये मिलने वाला है, करेक्ट? So that's the one possibility we checked out. But there is another possibility that dsp2 hybridization may take place. So for dsp2 what will happen? Let's see. For dsp2, here this is the configuration of nickel 2 piece, where we have 3D8, 4S0, 4P0, 4D0. If we want to form, rather say if you want to check out the possibility of dsp2 hybridization, it is very much understood that we require 3D orbital vacant. एक 3D ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब मैं आपको टेंडेंसी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स बता रहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हाई डू दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आई सेड वन वर्ड, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सच दैट दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल और कैन बी मेड वैकेंट। यहाँ पे वैकेंट नहीं है लेकिन वैकेंट की जा सकती। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, सबकी बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली ये वाला जो लास्ट वाला है, वो अगर किसी भी हाल में यहाँ पे आ गया तो ये वैकेंट हो सकती है। वो तभी पॉसिबल है कि जो आने वाला इनकमिंग लिगेंड है उसके पास इतनी ताकत है कि वो उसको पुश कर पाए। Then it depends upon the strength of the incoming ligand, and we know cyanide or cyano, it is strongest ligand. It can push the electron. So यहाँ पे वो पुश करेगा, अपने लिए जगह बनाएगा, जो जगह नहीं है वो बनाएगा, and it will make one d orbital available for itself. जहाँ पे ligand इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, 4s के पास देगा, 4p के पास देगा। So यहाँ पे what are you going to get is dsp2 hybridization. What are you going to get is dsp2 hybridization. Correct or not? And here, if it is dsp2 hybridization, shape of the NiCN4 would be square planar. Not only that, number of unpaired electrons is 0. As you can see, there are no unpaired electrons, so it will show diamagnetism. See here, we are talking about two topics. Means one topic, what can be the structure of NiCN2 minus. We discuss about two possibilities. दोनों स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, या तो dsp2 होगा स्क्वायर प्लानर बन सकता है, या तो sp3 होगा टेट्राहेड्रल बन सकता है। दोनों में से एक ही पॉसिबल हो सकता है। NiCN4 कैन नॉट हैव टू स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली, इट शुड हैव ओनली वन स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए? देन इट इज वेरीफाइड बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेजर किया गया। अगर वो डायमैग्नेटिक दिखाएगा देन स्क्वायर प्लानर, अगर पैरामैग्नेटिक दिखाएगा तो ये वाला। बट पता चला कि वो डायमैग्नेटिक दिखा रहा है। वो कौन सा दिखा रहा है? डायमैग्नेटिक दिखा रहा है। दैट मीन्स okay, here sp3 hybridization is not possible in this. Okay, that has been verified experimentally. This is what we have to write in exam. So before writing in exam, okay, हमको पहले से ही पता है कि इसमें dsp2 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर,
वो पहले से पता था। हमारा लिगेंड स्ट्रांग है, वो पहले से पता था, तुमको पता था ये झटका मारने वाला है। क्योंकि क्या है कि कितने सारे केसेस याद रखोगे कि इसमें ये है, इसमें ये है, दिमाग में ये याद रखना है स्ट्रांग लिगेंड है, वो तो अपने लिए जगह बनाएगा, वीक है नहीं बनाएगा। करेक्ट है ना? वही लोग अपने लिए जगह बनाते हैं जो स्ट्रांग है मेंटली, फिजिकली, दिमाग से। जो पीछे हट जाते वो तो नहीं करते। ध्यान से देखिए। See, I was talking to you about this. Since cyanide is strong, it pushes this. अच्छा, अभी जरा ध्यान से देखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, let me copy all this and we'll talk about something else. तो मैं इसके अंदर कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँ? हाँ, I have an idea. Let me do this. यहाँ पे मैं इसको लेके आ गया। ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट, इंस्टेड ऑफ NiCN4 आपको दिया गया है। ओके, टॉक अबाउट, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? खाली N की जगह पे मैं L लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? L। NiCl4 2 माइनस, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। There is no change in that. There are two possibilities, DsP2, sp3. इनफैक्ट उसके आंसर में ये सब चीजें लिखनी जो हमने ओके NiCN4 के लिए लिखा। ये चीज भी लिखोगे आप फर्स्ट पॉइंट कि भाई Ni उसका कन्फिगरेशन 3D8 4s2 40 है। वी आर गोइंग टू राइट दिस एंड दिस। कोई चेंज नहीं है, मैं अपनी पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं है। इवन Ni2 प्लस का कन्फिगरेशन भी चेंज नहीं होने वाला। 3D8 4s0 4p0 4d0 it remains same. Okay, then okay, उसका दो पॉसिबिलिटी, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट, एंड दूसरा है DsP2। sp3 में भी यही रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ओके, लिगेंड से शेप टेट्राहेड्रल आएगा, n = 2 पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा, एंड ये यही की यही चीज, कोई चेंज नहीं है। अगर वो DsP2 बनाता तो DsP2 के अंदर DsP2 के अंदर ओके ये धक्का मार के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आएगा, which we had seen earlier. ओके, नहीं खाली बता रहा हूँ, अगर DsP2 होता तो, अगर DsP2 होता तो इसके अंदर भी क्या होता, ये धक्का मारता, ये धक्का मारता, ओके, एंड आपके लिए ये बनाता, ये मिलता, ये मिलता। देन लास्ट कंक्लूजन क्या बोलते, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इट हैज बीन फाउंड आउट इट इज पैरामैग्नेटिक नॉट डायामैग्नेटिक, हेंस इसके अंदर ये हो रहा है। ये तो हमको पहले से पता है, क्यों? क्लोरीन वीक लिगेंड है, वो ये धक्का नहीं मारने वाला, करेक्ट है नॉट? समझना है? तो ये टॉपिक ऐसा है कि आप एक बार पढ़ाई कीजिए, एक चीज को समझिए, दूसरा अपने पास, समझना है कि नहीं? तो वही तो मैं सिखा रहा हूं।